Praise the Lord. God bless you all this evening, saints of God. Praise God, hallelujah. That's better. God bless you all, saints of God. खुदा परमेश्वर आप सबको बरकत दे. It's so nice to see you all here. यहाँ पर देखकर बहुत खुश हैं. Very nice to meet you all. आप सबसे मुलाकात करके बहुत खुश हैं. My name is Brother Matthew Gray from New Zealand. और मेरा नाम ब्रदर मैथन ग्रे है न्यूजीलैंड से. Some of you may have met my father, Brother Adrian Gray. और आप में से बतेरे जो हैं मेरे पापा एड्रियन ग्रे से मिल चुके हैं. Yeah, he was with some of you here last year. और पिछले साल जो है वो आप में से कईयों के साथ यहाँ पर मौजूद थे. So it's very nice to see some familiar faces as well. और फिर कुछ जाने पहचाने चेहरों को दोबारा मिलना बहुत अच्छा लग रहा है. Brother Sajid, God bless you, bro. ब्रदर साजिद को मिलके अच्छा लग रहा है. God bless you. And the other brothers from your fellowship as well. और God आपकी bless you. फेलोशिप के दूसरे भाइयों से मिलके अच्छा लग रहा है. God bless you. Also, I see Brother Ezekiel there. God bless you. और भाई इस्तेल को देख के अच्छा लग रहा है. Amen. Praise God. It's always a good meeting when the devil plays up with the sound system, saints. और जब भी मुकद्दस मिलते हैं तो बाज़ों का साउंड सिस्टम में मसला आ जाता है. Sign of a good meeting. और ये एक निशानी है कि मीटिंग अच्छी है. Shows the devil's read the notes in advance and he's concerned about it. क्योंकि अब लग रहा है कि अब्लीस ने जो है नोट्स पहले से देख लिए और अब वो परेशान हो गया है. So God bless you all. God bless you too. Thank you to Brother Akram for the invitation to come here. भाई अकरम आपका शुक्रिया इनविटेशन के लिए कि आपने बुलाया. Yeah, it's a very nice honor to be here in your assembly for the first time. और यहाँ पर आपकी असेंबली में पहली बार होना शर्फ की बात है. I understand this church has been blessed with quite a few ministers coming through already. और मैं ये बात जानकर बहुत खुशी है मुझे कि पहले ही बहुत से खादम आपके पास तशरीफ ला चुके हैं. And I trust that you have been blessed by the various ministries that have passed through the past month. और मैं ईमान रखता हूँ कि पिछले महीनों में जितने भी खदाम यहाँ पर आए आपने उनसे बहुत बरकत हासिल की. It's good to have a variety of ministry. और मिनिस्ट्रीज की वैरायटी होते हुए खादमों की वैरायटी होना वाकई एक कुछ अच्छी बात है. Bible speaks of a fivefold ministry. क्योंकि बाइबल जो है 5 खिदमतों के बारे में बयान करती है. And it just helps us to see things from different angles, the same thing from a different perspective. और इससे जो है हम एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट तरीकों से देख पाते हैं. And this evening I have a brand new interpreter. और आज रात जो है मेरे पास एक नया तर्जुमान है, तर्जुमा करने वाला है. I met Brother Khalid for the first time when I arrived in Karachi. और जब मैं भाई खालिद से पहली दफा कराची में मिला जब मैं पहली बार आया. I had a few hours between arriving in Karachi and flying to Islamabad. और कराची में मेरे पास कुछ घंटे मौजूद थे इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद आता. So Brother Khalid Yaqub from New Zealand, he contacted Brother Khalid. और भाई खालिद के चाचू जो है न्यूजीलैंड में भाई खालिद ने उनसे भाई खालिद ने राब्ता किया भाई खालिद से. And arranged for him and I to meet up and spend a few hours before my final flight. और उनकी बदौलत जो है हमारी मुलाकात हुई इससे पहले कि मैं यहाँ पर आता. And for a young brother, we were talking the same language. और जवान भाइयों और हम एक ही ज़बान में बात कर रहे थे. Things we were talking about in the Word, we were seeing it the same.
और जो बातें हम कलाम की कर रहे थे वो हम होते हुए भी देख रहे थे। I thought that was a really, really good thing. और मैंने वाकई वहाँ पर जाना कि ये बड़ी अजीम बात है। I'm sure tonight we will work as a good team up here. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज रात भी हम एक अच्छी टीम की तरह काम करेंगे। This brother, he drove 17 hours on a bus to come here tonight. ये भाई तकरीबन 17 घंटे का सफर करके यहाँ पर आए हैं। I mean, that's commitment, brethren. और ये वाकई एक अच्छी बात है और कमिटमेंट है। I don't even think I would have done that. और कह रहे हैं कि मैं नहीं सोचता कि शायद मैं ये कर पाता। Also want to say thank you to Brother Ramesh who has interpreted every service for me this far. और ब्रदर रामेश के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मेरी तमाम ही बातों की ट्रांसलेशन की है। He was originally going to be my interpreter tonight. और आज रात भी उन्होंने ही तर्जुमा करना था। He was graciously given the task to Brother Kelly. और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और भाई खालिद को दावत दी। Brother Ramesh, he is an excellent interpreter. और भाई रामेश भी जो है बहुत अच्छे तर्जुमा करने वाले हैं। Amen. God has given him a good ministry and a good vision as well. और खुदा ने इनको एक अच्छी खिदमत दी और एक अच्छी रोया अता की है। It's really nice to see young brothers with a vision and using their gifting that God gave to और them. बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान भाई जो हैं वो अपने रोया लेके अपनी खिदमतों को चमका रहे हैं। Also to our brother Shamoon who has really hosted me for the duration of my time here. और भाई शमून के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस पूरे टाइम के अंदर मेरी देखभाल की है। Brother Shamoon is a great man of God. और भाई शमून जो है खुदावन के अजीम बंदा है। And, I just want to say again, brother, thank you so much for being a good friend and a good host for me for my time here. और मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे मेजबान हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। Even to the other saints from our camp that have travelled with us, God bless you all. और वाकई से जितने भी मुकद्दसीन हमारे साथ आए हैं उन सबको खुदावंद बरकत दे। This is my final service here in Pakistan. और आज रात पाकिस्तान में मेरी आखिरी इबादत है। It's been a wonderful time. You are such an excellent people, brethren. और आप लोग बड़े ही अजीम बाबरकत लोग रहे हैं और मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। I've seen many fine qualities that I wish I could see more in Western people. और मैंने यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटीज देखी हैं, बड़ा अच्छा इखलाक देखा है और यही काश मैं मगरबी दुनिया की तरफ भी देख पाता। You have a great love for the word. You're very hospitable, excellent food. और यहाँ पर जो है कलाम से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खाना बहुत अच्छा और मेजबान भी बड़े अच्छे Know how to make a visitor feel very, very welcome here. और जो भी मेहमान आता है उसको बड़ी अच्छी मेजबानी से खुश कर देते हैं। And I'm not the best at saying thank you enough, saints. और देखें मैं इतना बेस्ट नहीं मैं थैंक यू कर सकता जितनी आपका खिदमत हुई है, But the Lord knows my heart, and I लेकिन think खुदावन मेरे दिल को जानता thank है you all very और much. मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Amen. Tonight, brethren, we are going to look at a small subject in the scriptures. और हम जो है बाइबल मुकद्दस में से आज एक अन्वान पर गौर करेंगे। I haven't even read my own notes, saints. और मैंने जो है अपने नोट्स खुद भी नहीं पढ़े हैं I preached this back in 2022. और मैंने ये पैगाम जो है 2022 में प्रीच किया था I vaguely remember what it was about, but I'm going to be learning as we go along. और मुझे भी बिल्कुल हल्का हल्का याद है कि ये पैगाम क्या है, मगर हम सब सीखेंगे जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। I originally had a thought in mind for tonight, but I just felt to change the subject. और मैंने ख्याल कुछ और किया था बयान करने का, लेकिन अब जो है वो सब्जेक्ट तब्दील कर दिया है। So I need the Lord to bring these notes all back to my remembrance, और मैं खुदावन की मदद चाहता हूँ कि ये तमाम नोट्स दोबारा मुझे याद करवाए so we can have a good time in the Word. ताकि हम जो है कलाम में एक अच्छा वक्त गुजारें। Amen. आमीन। So, brethren, while we're standing, if you'd like to turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 12. और मेरे अजीजों जब हम खड़े हुए हैं तो आए पहला करंथियों 12वें बाब में चलते हैं Verses 12 to 27. और उसकी 12 बाब की 12 to 27. 12 बाब की 12वीं आयत और 17वीं आयत तक तलावत करेंगे। Our brother Khalid, he will read our scriptures. It's a long scripture. 12 आयत से तलावत करते हैं। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर वहां मिलकर एक ही बदन हैं, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी ख्वाह गुलाम ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में
एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। To verse 27. और इसकी 18वीं आयत में मरकूम है, मगर फिलल वाक़या खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरीका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक उज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ू इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। आमीन। Amen. You may take your seats, brethren. आप तशरीफ रख सकते हैं। For a subject tonight, I would like to speak on each member of the body must wait on its ministry. और आज के अनुमान के लिए जो हम अनुमान देंगे उसका टाइटल ये है, हर एक बदन के मेंबर को उसकी खिदमत के लिए इंतजार करना चाहिए। Amen. And this is a very important subject for all of us to understand. और ये बहुत ही खास अनुमान है हम सब के लिए, ताकि हम इसे समझें। That we together, brethren, are part of the body of Jesus Christ. कि हम सब मिलकर मसीह यीशु के बदन का हिस्सा हैं। Amen. Amen. So we need each other in order to function fully. और अगर हम पूरे तरीके से खिदमत करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। Right? There is nobody in the body of Jesus Christ that is not important. और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है यीशु मसीह के बदन में जो जरूरी नहीं है। All of us are important. All of us have value, saints. और हम सब जो हैं वो खास हैं, और हम सब की एक कीमत है, एक वैल्यू है। Amen. Nobody should be sitting in the house of God thinking there is no point me being here. और कोई भी खुदा के घर में ऐसा बैठा होना नहीं चाहिए कि वो सोचे कि मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। And of course, the prophet of God would tell us that the beauty of the church is the character of the people. और जैसा कि नबी ने हमें बताया कि जो कलीसिया की खूबसूरती है वो उसका किरदार है। So it is the nature of Jesus Christ seen in the people that makes the church truly wonderful. और ये यीशु मसीह का किरदार होता है जो कलीसिया में जाहिर होता है और उसको खूबसूरत बनाता है। Amen. Amen. Now the headship of the church body is Jesus Christ. और जो कलीसिया के बदन का सर है वो यीशु मसीह है। Is that right, saints? क्या मेरे अजीज को ये बात दुरुस्त है? Amen. Which means we do not have a headquarters somewhere on the earth. इसीलिए अब हमारा जमीन पर कोई एक हेडक्वार्टर नहीं है। We are not reporting to some office in another country, brethren. और ना ही हम किसी दूसरे मुल्क में किसी ऑफिस को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। Jesus Christ is our headship. क्योंकि यीशु मसीह हमारा सर है। Amen. Amen. And even though God has given us a shepherd of the local body to sit under, और हालांकि इस लोकल कलीसिया के होते हुए खुदा हमें एक सरबराह मुहैया करता है कि उसके तले हो। the Bible teaches that God has given us pastors, और खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि खुदा ने हमें पादरी दिए, and they are the God-appointed shepherd for their flock.
और वो जो है खुदा की तरफ से मुहैया करदा लोग हैं कलीसिया के लिए। But even those men are to be under the headship of Jesus Christ. लेकिन उन लोगों को भी जो है खुदावंद यीशु की सरबराही में होना चाहिए। Amen. Amen. So all of us are to be under headship. बस हम सब जो हैं उस सरबराही के तले होने चाहिए। Amen. Amen. Which means that we are not projecting our own thinking onto the people. इसका मतलब है कि हम अपनी सोच अपनी समझ लो है लोगों तक नहीं लेके जा रहे। We're not preaching our own ideas, our own politics on the people. ना ही हम अपनी सोच लोगों को बयान कर रहे हैं, ना अपनी सियासत बयान कर रहे हैं। We are presenting the thinking of God, the heart of God. बल्कि हम खुदावंद की सोच को उसके इरादा को बयान कर रहे हैं। Amen. Amen. In our scripture in 1 Corinthians chapter 12, और इसी हवाला के अंदर Paul likens the church to a human body. पौलुस जो है कलीसिया को एक इंसानी बदन के मुशाबा पेश करता है। And he would show us that a physical body has external members and internal members. और पौलुस बताता है कि जो एक फिजिकल बॉडी होती है, बातनी बदन है, उसके कुछ बैरूनी अज़ू होते हैं और कुछ अंदरूनी अज़ू होते हैं। In other words, members that can be seen and parts that cannot be seen. ऐसे अज़ू जो देखे जा सकते हैं मगर कुछ ऐसे अज़ा भी हैं जिनको नहीं देखा जा सकता। Amen. Your hand, that part of the body can be seen. जो आपका हाथ है, बदन का ये हिस्सा जो है दिखाई दिया जाता है। But the heart that beats and pumps blood is a member that cannot be seen. और मगर जो दिल है जो आपके खून को पंप करता है उसे देखा नहीं जा सकता। Amen. Amen. If your heart was not pumping, saints, your hand would not be working. देखिए अगर आपका दिल ही पंप नहीं करेगा तो आपका हाथ काम नहीं करेगा। Amen. So you need the visible members and those who work behind the scenes. और आपको जरूरत है वो तमाम खुदाम की जो सामने होते हैं और उनकी भी जो पीछे काम करते हैं। Right? You see, on Sunday morning, the pastor, he steps up. देखिए इतवार के रोज जो है पास्टर तो सामने आते हैं And you can clearly see him carrying out a ministry. और आप देख सकते हैं बड़े तरीके से पास्टर आता है और खिदमत करता है। He is an external member, physically visible to the people. देखिए वो जो है वो बैरूनी हिस्सा है, लोग उसको खुद अपनी आंखों से देख पाते हैं। But then there are many other members of the body whose part they play cannot be seen. लेकिन और भी कलीसिया के मेंबर हैं जो अपना किरदार पूरा निभाते हैं मगर उन्हें देखा नहीं जा सकता। And let me tell you, brethren, if you are not a praying church, your pastor can't carry out his ministry. और देखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप एक दुआया कलीसिया नहीं हैं तो आपका पास्टर अपनी खिदमत को पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे सकता। Is that right? You need to pray for the ministry. क्या ये दुरुस्त है? आपको उसकी खिदमत के लिए दुआ करनी है। Nobody sees you praying for the pastor. देखें जब आप दुआ करते हैं तो कोई आपको देखता नहीं, आप अपने पादरी के लिए दुआ कर रहे हैं। But if you aren't praying for him, how can he help you, saints? देखें लेकिन अगर आप दुआ ही ना करें तो वो आपकी मदद कैसे करेगा? So we all have a part to play, even if it is not seen. देखिए हम सबका एक हिस्सा है जो हमने अदा करना है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। Remember, if the unseen heart in the body stops pumping blood, देखें अगर हम उस दिल को ना देखें जो पंप करता है खून को, the whole body will die. तो पूरा बदन मर जाएगा। If the kidneys are not carrying out their function, brethren, और भाइयों अगर जो हमारे गुर्दे हैं वो पूरे तौर पर अपना हिस्सा अदा ना करें, the whole body will suffer. It will feel it. तो पूरे बदन को दर्द महसूस होगा और वो एहसास करेगी। So whatever part you have to play, great or small, चाहे आपका फिर कोई भी किरदार है, चाहे बड़ा है या छोटा है, that role is very important. वो किरदार जो है बहुत खास है। Amen. Amen. In the Bible, the Apostle Paul would call an unfaithful woman a harlot. और बाइबल मुकद्दस में जो है पौलुस रसूल एक बेवफा औरत को एक कस्ती कहता है। And a woman was called a harlot when she used her body the wrong way. और तब उसको कस्ती कहा जाता है जब वो अपने बदन का गलत इस्तेमाल करती है। See, she was using her body for her own personal gain. देखें वो अपने बदन को अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करती है। When you turn to the book of Revelation, you read of the great whore. और जब हम मुकाशवा की किताब में जाते हैं तो बड़ी कस्ती के बारे में पढ़ते हैं। And the prophet would teach us that that unfaithful woman was the false church. और देखें नबी फरमाते हैं कि वो जो बड़ी कस्ती है वो झूठी कलीसिया है। And that false church body has
many members, brethren. और देखें उस झूठी कलीसिया के भी कई मेंबर हैं। Just like you have hands and feet and a head. बिल्कुल जैसे आपके हाथ हैं, पाँव हैं और सर है। Your body has many members. आपकी बॉडी के बहुत से अज़ू हैं, अज़ा हैं। And the false church has many members. और जो झूठी कलीसिया है उसके भी बड़े मेंबर हैं। Amen. She has members that are entertainment. और उसके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सिर्फ तफरीह के हैं। She has members that are financial. और उसके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। Because remember, this false church controls the whole world. क्योंकि याद रखें ये जो झूठी कलीसिया है पूरी दुनिया पर कंट्रोल रखती है। Right? She has made the kings of the earth drunk on the wine of her क्योंकि fornication. उसने बादशाहों को, जमीन के बादशाहों को अपनी मैल में मतवाला किया है। Right? By misusing her body. देखें ऐसा किया कैसे, अपने बदन का गलत इस्तेमाल करके। See, by using her entertainment. अपने बदन का जो है इस्तेमाल किया ये करने के लिए। In the world of finance, economics. और अपनी मईशत अच्छी करने के लिए, अपना खजाना अच्छा करने के लिए ये किया। In the world of media. और मीडिया के जमाना में, in the military, और मिलिट्री के दौर में, all those things are just parts of her body. और ये जितनी भी आज चीजें हैं ये सब उसके बदन का हिस्सा है। And she is using those members of her body for her own gain, to achieve her own agenda. और वो इन तमाम मेंबर्स को अपनी जो जाती ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। Do we understand? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? Amen. So we locally, brethren, God has established local churches. देखिए मेरे भाइयों, खुदा ने जो है मकामी कलीसियाओं को जो है वो उन्हें कायम किया है। Like here in the city of Lahore, there's more than one church. और बिल्कुल जैसे यहाँ लाहौर में एक कलीसिया से बढ़कर कलीसियाएं हैं। There's more than one pastor. और यहाँ पर एक पास्टर से बढ़ के पास्टर्स हैं। But the purpose of each church, brethren, is to work together. लेकिन हर कलीसिया का जो मकसद है वो ये कि एक दूसरे के साथ ताउन करके चलें। Not to glorify itself. बस खुद की जो है वो बड़ाई ना करें। Not to say, well, I am the great big church of Lahore. और ये ना कहें कि लाहौर में सबसे बड़ी कलीसिया हम हैं। But to present, to point the people to the Lord Jesus. बल्कि यीशु मसीह तक सबकी रहनुमाई करें। Amen. Amen. That is the purpose of the church, say, to bring people closer to the Lord. और मेरे अजीजों, यही कलीसिया का असल मकसद है कि लोगों को खुदावंद यीशु मसीह तक लाया जाए। And even for myself throughout my visit here in Pakistan. और यहाँ पर जो मेरी विजिट रही है पाकिस्तान में, going to different churches, visiting different people. और कई मुख्तलिफ चर्चेस का विजिट किया, कई मुख्तलिफ लोगों से मिला। I say to the people, I am not some special man. और मैंने हर जगह पर लोगों को यही कहा है कि मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ। I'm not up here and you're down here. और ना मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं। I'm not the eighth angel, saints. और ना ही मैं कोई आठवां फरिश्ता हूँ। I am just your brother. मैं सिर्फ आपका भाई हूँ। I haven't come here to bring the word in order for you that I can be your hero. और ना ही मैं इसलिए हूँ कि आपका हीरो हो जाऊँ। I'm just here to help you draw a little closer to the Lord Jesus. मैं सिर्फ यहाँ इसलिए हूँ कि आपकी मदद करूँ कि मसीह के पास हो जाएं आप। And then I will go back home to my own country. और फिर मैं वापस अपने मुल्क में चला जाऊँगा अपने घर। And the local ministers continue on ministering the word. और फिर जो है पीछे जो लोकल खादम है वो इस खिदमत को जारी रखेंगे। Amen. And that is an attitude that all ministry ought to have. और ये एनर्जी जो है वो हर खिदमत गुजार के अंदर होनी चाहिए। Ministry is not about me, it's about him. और जो खिदमत है वो मेरे बारे में नहीं बल्कि यीशु के बारे में है। And saints, I really mean that from my heart. I'm not here to glorify myself. और मुक़द्दसों, मैं यकीनन ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खुद को इज्जत या जलाल देने के लिए नहीं आया। If you don't like me, I really don't care. और अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। If you don't like what I preach, I really don't care. और अगर आपको नहीं पसंद मैं क्या मुनादी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। Because I'm not here for myself. क्योंकि मैं यहाँ खुद के लिए नहीं आया। I'm here to represent the Lord. मैं यीशु मसीह की पहचान के लिए आया हूँ। All us ministering brothers, we have to stand before the Lord Jesus. क्योंकि एक दिन हम सब खिदमत गुजार भाइयों को खुदावंद यीशु के आगे खड़ा होना है। And we have to give an account for how we used what God gave to us. और हमें हिसाब देना पड़ेगा जो खुदा ने हमें दिया उसका हमने कैसे इस्तेमाल किया। And I want to stand before the Lord knowing full well I tried to point the people to Him.
और मैं खुदावंद यीशु के आगे इस बात के साथ खड़ा होना चाहता हूं कि मैंने लोगों की रहनुमाई तुझ तक की। Amen. And I can honestly say, brethren, in my time, I had 2 visits to Pakistan. That is what I've tried to do. और मैं यकीनन भाइयों आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान में जो मेरी 2 विजिट्स हुई हैं, इन दोनों के दरमियान मैंने बस यही करने की कोशिश की है। Amen. Amen. So God, when He placed the church on the earth in the last days, और आखिरी दिनों में जब खुदा ने कलीसिया को जमीन पर कायम किया, that church body was placed as a complete finished unit. और उस कलीसिया को जब कायम किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर कायम करदा कलीसिया थी। There is nothing lacking in the church body of Jesus Christ. और यीशु मसीह की दुल्हन के अंदर, उसके बदन के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। You know, sometimes in a human body you can be mineral deficient. और देखें कभी कभार क्या होता है, बातनी इंसानी बदन के अंदर आपको कुछ मिनरल विटामिन की कमी हो जाती है। Sometimes we're lacking a bit of iron. और बाजों का जो है हमें आयरन की कमी हो जाती है। It could be lacking zinc or something. और जिंक की कमी हो जाती है, किसी और चीज की कमी हो जाती है। But the bride of Jesus Christ, that body does not lack anything. लेकिन यीशु मसीह की दुल्हन के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। There is nothing missing in that body. Nothing is missing in the church उस body. बदन के अंदर कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं है। Like you see people on the streets here, they might be missing an arm. और आप जैसे गलियों में लोग देखते हैं, शायद किसी का बाजू नहीं है, They might be missing a leg. शायद उनकी एक पाँव नहीं है, But the church body is not missing an arm. लेकिन जो मसीह का बदन है उसकी कोई बाजू मिस नहीं है। Amen. It is a complete and finished unit. ये जो कलीसिया है ये मुकम्मल है और कमाल है। Right? Amen. Because the body of Jesus Christ has been birthed by the Holy Ghost. क्योंकि जो यीशु मसीह का बदन है इसे जन्म पाक रूह के वसीला मिला है। That is important. You were birthed by the Holy Ghost. और ये बड़ी खास बात है कि आपका जन्म पाक रूह के वसीला हुआ हो। Which means that the church body is not handicapped. और इसका ये मतलब है कि जो कलीसिया है वो अपाहिज नहीं। Right? You see people that are handicapped. देखें, आपने ऐसे लोग देखे हैं जो अपाहिज होते हैं, There was something wrong with their birth. क्योंकि उनके पैदाइश के अमल में कुछ खराबी होती है। Something did not go right. कोई चीज ऐसी होती है जो दुरुस्त नहीं हुई होती। But when a church was birthed by the Holy Ghost, लेकिन जब एक कलीसिया पाक रूह के वसीला जन्म पाती है, it was a perfect body shape. तो फिर वो जो है मुकम्मल बदन के तौर पे जन्म पाती है। Amen. It is not a monster, the church body. और जो कलीसियाई बदन है वो कोई हैवान नहीं है। You know, brethren, anything with more than one head on it is a monster. और देखें भाइयों, कोई भी शय जिसके 2 सर हो वो हैवान है। You know, when you've got 2 people fighting for control, that's a monster. लेकिन जब 2 लोग कंट्रोल देने के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपने हैवान हासिल कर लिया है। Okay? You've got the pastor preaching his will against the will of God. देखें, क्योंकि फिर पास्टर जो है अपनी मर्जी से कलाम दे रहा है, खुदा की मर्जी नहीं देख रहा। Well, what kind of church are you going to have? तो फिर इसके बाद आपकी कलीसिया कैसी होगी? It's going to be a messed up church. saints. देखें, ये एक खराब कलीसिया होगी, Because there's 2 powers wrestling for position. क्योंकि 2 ताकतें हैं जो उस मकाम के लिए लड़ रही हैं। But God's church is not a monster. लेकिन देखें, खुदा की जो कलीसिया है वो कोई हैवान नहीं। But you see, when we look at the church body globally, brethren, लेकिन आप देखें भाइयों, जब हम पूरी दुनिया के ऊपर बदन पर निगाह करते हैं, we find that there oftentimes can be a lot of confusion in churches. और फिर हम पाते हैं कि कई कलीसियाओं के अंदर बहुत सी कंफ्यूजन पाई जाती है। And that's not God's fault. और देखें, ये खुदा की गलती नहीं है। Right? God is not responsible for confusion. क्योंकि खुदा कंफ्यूजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। Our prophet would teach us that God is not the author of confusion. क्योंकि हमारा नबी हमें सिखाता है कि जो हमारा खुदा है वो कंफ्यूजन का बानी नहीं है। So when there is confusion in the church, और देखें, जब किसी कलीसिया में कोई कंफ्यूजन है, उलझन है, it is because of man, not God. और ये उलझन जो है किसी आदमी की वजह से आती है, खुदा की वजह से नहीं। Amen. It's because some men in position don't have the Holy Ghost. Saints. देखें, क्योंकि कोई आदमी उस मकाम पर बैठा होता है जिसके अंदर पाक रूह नहीं होता। Right?
Just because you have a gift to preach doesn't mean you have the Holy Ghost. देखें, इसका ये मतलब नहीं कि आप मनादी कर सकते हैं तो आपके पास पाखरू है। Because the gift and calling of God is before repentance. देखें, क्योंकि जो खुदा की नेमतें हैं और जो बुलावा है वो बेतब्दील है। Amen. So a man can be gifted but misusing his gift. देखें, फिर इस वजह से एक शख्स के पास नेमत हो सकती है मगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। And he can damage the people, damage the church. और इस तरीके से जो है लोगों का नुकसान किया जाता है और वो कलीसिया का नुकसान करता है। Amen. Amen. This is why the prophet would teach us that no man ought to bring the word unless he's met the pillar of fire. और इसी वजह से नबी हमें सिखाते हैं कि कोई शख्स कलाम सामने ना लाए जब तक वो आपके सतूत से मुलाकात ना कर ले। Because if we've met God, then we will only present God to the people. देखें, जब हम खुदा से एक बार मुलाकात कर लेंगे तो फिर हम खुदा को ही लोगों तक लाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So all around the world, God has local assemblies set up. देखें, पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने जो है मकामी कलीसियाओं को कायम किया है। And the Bible teaches us very plainly that we are not to forsake the assembling of the saints. और देखें, बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हम कभी भी उन मकामी कलीसियाओं को ना भूलें। Especially when you see the day approaching. और उस वक्त ना भूलें, उस वक्त उनको दरगुजर ना करें जब आप उस दिन को नजदीक आते हुए देखें। Amen. आमीन। So already we see we have a responsibility to support your local church. और देखें, अब हम पहले से ये जानते हैं और ये बात क्लियर करती है कि हम पे जिम्मेदारी है कि अपनी मकामी कलीसियाओं की मदद करें। And to support, pray for and respect your pastor. और दुआया अंदाज में मदद की जाए और अपने पास्टर की इज्जत की जाए। Because if you cannot respect your pastor, how can God bless you, saints? और देखें मुकद्दसों, अगर आप अपने पास्टर की इज्जत नहीं कर सकते तो खुदा आपको बरकत कैसे देगा? Brother Usher, God bless you. भाई आशिर, खुदावंद आपको बरकत दे। If you can't respect the ministry God has given, how can God bless you? और अगर खुदा ने आपको जो खिदमत दी है, अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो खुदा आपको बरकत कैसे देगा? Amen. आमीन। So I encourage you, you pray for your ministry. और मैं जो है बड़े दुआया अंदाज में आपके पास आया हूँ और आपके लिए मेरी दुआ है। Do you know why you need to pray for the ministry? और आप जानते हैं कि आपको दूसरों की मिनिस्ट्री के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ की क्यों जरूरत है? Because they are flesh and blood just like you are. क्योंकि वो भी खून और बदन रखते हैं बिल्कुल आप ही की तरह। Right? They make just as many mistakes as you make. क्योंकि वो भी उतनी ही गलतियां करते हैं जितनी आप करते हैं। And they need the Lord Jesus as much as you do. और उनको भी खुदावंद यीशु की उसी कदर जरूरत है जितनी आपको है। Right? These brothers that minister, they have to deal with their own problems and your problems. देखें, जो खादम हजरात होते हैं इनको अपने मसले भी देखने पड़ते हैं और फिर कलीसिया के मसले भी देखने पड़ते हैं। So they are carrying a lot more weight. देखें, फिर ये बोझ, ज्यादा बोझ के साथ खिदमत कर रहे होते हैं They're carrying a lot more load. और ये बोझ ज्यादा वजन उठाए होते हैं। So pray for them. और इस वजह से कलीसिया को चाहिए अपने खादमों के लिए दुआ करें। And when they preach a good message, tell them, brother, that was wonderful. और जब आपका पास्टर अच्छा पैगाम दे तो उसको अप्रिशिएट करें कि आपने अच्छा पैगाम दिया है। They are human beings, brethren. क्योंकि भाइयों बहनों वो भी इंसान हैं। Right? They have emotions, they have feelings. क्योंकि उनके भी जज्बात हैं, उनके भी एहसास हैं। Support them. That's a responsibility of the church. और ये कलीसिया की ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने खादम को सपोर्ट करें। We are all called by God to be a part of a church body somewhere. और हम सबको इसलिए बुलाया गया है कि किसी न किसी जगह पर खुदा की कलीसिया का हिस्सा हो। Is that right? क्या ये दुरुस्त है? So if you are part of a church body, then you need to be connected to that body. और अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं, किसी बदन का हिस्सा हैं, तो आपको उस बदन में जुड़े रहना है। You know, people say, well, I am part of such and such a church. क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं फलां कलीसिया का हिस्सा हूँ, But they only stream into the meetings. लेकिन They don't actually go to the church, they just stream in. और कहते हैं कि मैं इस फलां कलीसिया का हिस्सा हूँ, मगर ऑनलाइन ही सुन लेते हैं, चर्च कभी नहीं गए। People, they live in, say, Pakistan, but they're part of a church in America. और कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मगर अमेरिका में जो है इबादत अटेंड करते हैं।
That is not being connected to a church body. देखें, ये तरीका नहीं है कलीसियाई बदन के साथ जुड़ने का। My arm, saints, is not sitting over there. देखें, मेरे बाजू वहां पर नहीं बैठे हुए, My arm is part of my body. क्योंकि मेरा जो आर्म है, मेरा बाजू मेरे बदन का हिस्सा है। And because my arm is connected to my body, my arm works. और क्योंकि ये मेरे बदन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये काम भी करता है। But if my arm is over there, nothing's going to work. लेकिन अगर मेरा बाजू वहां पड़ा रहे तो कोई काम नहीं होगा। See? समझे? Now understand, I'm trying to say this sensibly now. देखिए, अब मैं बड़े तरीके से ये बात बयान कर रहा हूँ। If you live 1,000 miles away from civilization, that's different, saints. देखें, अगर आप आज की तहजीब से 1000 मील दूर रह रहे होते तो फिर बात अलग थी। Yes, there are cases where people just can't get to a local church देखें, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मजबूरन कलीसियाओं में नहीं जा पाते, because they live so far away from anything. क्योंकि वो बहुत सी कलीसियाओं से बड़ी दूर दूर जगहों पर रहते हैं। I am speaking about people who have access to a local body और मैं आज उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके आसपास मकामी कलीसियाएं मौजूद हैं, and choose not to be a part of it. लेकिन वो ये चुनाव करते हैं कि चर्च नहीं जाना। You think you could go in a rapture when you're disconnected from the body, saints? और कई मुकद्दसीन, क्या मैं सवाल है मेरा, क्या आप इतने दूर रह के रैप्चर का हिस्सा हो सकते हैं? Well, you say, well, God is blessing me by the Zoom meetings. I'm और being लोग blessed. कहते हैं कि ज़ूम मीटिंग से वसीला खुदा मुझे बरकत दे रहा है। Well, you might be getting blessed, but you're still not connected to the body. देखिए, हो सकता है आप बरकत पा रहे हो मगर आप बदन के साथ नहीं जुड़े, All that's happening is you're getting more educated, but nothing's getting in here. क्योंकि हो ये रहा है कि आप अकल और फहम तो बहुत हासिल कर रहे हैं मगर दिल में कुछ नहीं है। No, saints, be a part of what God has set up in the place where you live. देखिए मेरे अजीजों, उस कलीसिया का हिस्सा बने जो खुदा ने मकामी तौर पर कायम की है। Amen. You know what a disease is in the body, saints? आप जानते हैं अजीज मुकद्दसों के बदन के अंदर बीमारी क्या होती है? It's when a devil gets onto a cell in the body and corrupts it. जब इब्लीस बदन में दाखिल होता है और एक खलिए को बिगाड़ देता है, And then that starts to multiply and disease breaks out in the और body. फिर वो जो खलिया है वो बढ़ना शुरू होता है और आपके हाथ या कहीं पर भी बीमारी आ जाती है। And you can get a case of spiritual leprosy. और फिर जो है इसी तरीके से आप रूहानी तौर पर कोढ़ भी ले आते हैं। Do you know what happens when you're a spiritual leper? और आप जानते हैं जब आप रूहानी कोढ़ी बन जाते हैं क्या होता है? Your limbs start falling off your body. तो फिर पता है क्या होता है कि आपके बाजू जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। Spiritual leprosy. जी हाँ, यही है रूहानी कोढ़पन। Amen. Unbelief is spiritual leprosy. देखें, बेइत्तेकादी जो है वो रूहानी कोढ़पन है। People start getting a bad attitude. और देखें, इस वजह से लोगों का रवैया बुरा होना शुरू हो जाता है That attitude begins to grow and resentment begins to form. और उनका रवैया बुरे से बुरा होता जाता है और वो दूर दूर होते जाते हैं। And then you feel like, I don't want to be a part of my church anymore. और फिर उनको महसूस होता है कि अब मुझे इस कलीसिया का हिस्सा ही नहीं रहना, I don't like Pastor so-and-so. I don't like him. और मैं पास्टर फलाफला को लायक नहीं करता, बस खत्म। I don't like how he preaches. He's so direct and harsh. और मुझे नहीं पसंद वो कितनी सीधी मनादी करते हैं और सख्त मनादी करते हैं। If you let that kind of attitude sit there and develop, saints, you will remove yourself from that assembly. और अगर मुकद्दसों आप यही रवैया इख्तियार करते हैं और इसे बढ़ने देते हैं तो आप उस चर्च से दूर और दूर हो जाएंगे। You're not hurting the church, you're hurting yourself. और ये करके आप खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कलीसिया को तकलीफ नहीं पहुंच रही। Amen. Brethren, no church on the face of the earth is perfect. देखें, दुनिया पर कोई ऐसी कलीसिया नहीं जो कामिल हो। Amen. There is no church in the world that's perfect. और पूरी दुनिया में कोई ऐसी कलीसिया नहीं है जो कामिल है। There are members in every congregation who will annoy you. और बहुत से हर कलीसिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो आपको तंग करेंगे। There will always be preachers that you just don't like. और हमेशा कई ऐसे मनाद भी आएंगे जिनको आप पसंद नहीं करेंगे। You might not even like your pastor. हो सकता है कि कभी कभार आपको आपका पादरी भी अच्छा न लगे, But you need to pray. लेकिन आपको दुआ करने की जरूरत है। Not that the Lord will change your pastor. और ये दुआ न करें कि खुदा आपके पास्टर को तब्दील कर दे। You're not praying that the Lord will sort out the annoying characteristics of everybody else. और आप ये ना सोचें कि खुदा आपकी अकल के मुताबिक अपने फैसले तब्दील करेगा।
you want to say, Lord Jesus, change me. बल्कि कहें खुदावन मुझे तब्दील कर दे। Amen. Amen. Because understand, saints, that even if you don't like your pastor, it doesn't mean he's preaching false doctrine. देखें, अगर आप अपने पास्टर को लाइक नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत तालीम दे रहा है। He could be preaching the truth, but you just don't like him. देखिए, हो सकता है वो मनाती सच्चाई की कर रहा हो, पर शायद आप उसे पसंद ना करते हैं। That's not a reason to walk out on the church. और ये कोई रीजन नहीं है कि आप कलीसिया छोड़ के बाहर चले जाएं। Yes, you want to be in a place where you know this was where God has placed me. देखिए, आपको ये पता होना चाहिए और आपका रवैया ये होना चाहिए कि खुदा ने मुझे यहाँ कायम किया है। Amen. We all need a revelation of our home church. और देखिए, हम सबके पास ये मुकाशफा होना चाहिए कि हमारी मकामी कलीसिया कौन है। We all need a revelation of who our pastor is. और हमें ये मुकाशफा हासिल होना चाहिए हमारा पास्टर कौन है। So if you're sitting in a church but you don't like the pastor, देखें, और अगर आप एक कलीसिया में बैठे और आप अपने पादरी को पसंद नहीं करते, you don't like the church, और आप कलीसिया को पसंद नहीं करते, you say, Lord, I don't feel like this is the place where I'm at home. और आप कहते हैं खुदावन मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पर अपने घर जैसा महसूस करता हूँ, But I am still going to support this place until you lead me somewhere else. लेकिन आप अच्छे रवैये में कहते हैं कि मैं तब तक यहाँ पर आना जारी रखूंगा, मदद जारी रखूंगा जब तक तू किसी और जगह मुझे नहीं भेज देता। Right? Don't just walk out because you're not happy. और आप जो है गुस्से में बाहर नहीं निकल जाते क्योंकि आपको अगला बंदा नहीं पसंद है। Amen. आमीन। We understand these things by what the Bible teaches us. और देखें, हम ये तमाम बातों को समझते हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। Amen. You see, if there is a damaged cell in the body, saints, देखें, अगर जो है कोई भी खराब खलिया जो है वो बदन में होगा, you will not see its physical manifestation immediately. तो देखें, फिर जो आपके बदन में खराबी होगी वो फौरन तो आपको नहीं दिखाई देगी। It takes time for it to be seen. देखें, उसको वक्त लगता है कि वो सामने अपने आप को दिखाए। It takes time for the disease to break out on the exterior. और बीमारी वक्त लेती है कि वो आपके हाथ पर या कहीं बदन पर जाहिर हो। So you might still look good even though you have a bad attitude. देखें, हो सकता है आपका रवैया बुरा हो मगर फिर भी आप ऊपर से अच्छे दिखाई दे सकते हैं। But sooner or later that wrong attitude, that wrong spirit will manifest. लेकिन देखें, आज या कल किसी भी वक्त वो जो गलत रूह है आपके अंदर वो बाहर जरूर आएगी। Right? And that spirit of unbelief will become a hindrance to the body. और देखें, वो जो बेतकादी की रूह है फिर वो बदन के लिए रुकावट का बाइस बनेगी। The whole church will be pulled down by a spirit of unbelief. देखें, बेतकादी की रूह की वजह से वो पूरी की पूरी कलीसिया गिरावट का शिकार होगी। By a spirit of bitterness. और देखें, ये जो करवाहट के बीच की वजह से, By a spirit that's disrespectful. और ये जो रूह है जो इज्जत नहीं करती है इसकी वजह से ज़बान पसीर होगी। Saints, those things affect the church. देखें, ये जो रूहें हैं ये कलीसिया की रुकावट का सबब हैं। Right? Sin gets into the church. और इस तरीके से जो गुनाह है वो कलीसिया में शामिल हो जाता है। And when a disease is so bad in a body, do you know what they do? और आप जानते हैं कि जब एक बदन में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? The doctor says, I'm sorry, but we can't fix this. और फिर डॉक्टर कहता है कि माजरत हम अब कुछ नहीं कर सकते। So we're going to have to amputate. और अब जो है हमें कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। We're going to have to cut this part of the body off. अब हमें जो है बदन का फलां हिस्सा काटना पड़ेगा। Because it's affecting the rest of the body. क्योंकि देखें, इसकी वजह से बाकी बदन भी खराब हो रहा है। Do you know what that's called in the Bible? और आप जानते हैं बाइबल में इसे क्या कहा गया है? It's called church discipline. और इसको बाइबल में जो है कलीसिया की तरतीब कहा गया है। The purpose of church discipline is to try and save that member of the body. देखें, जो कलीसिया की तरतीब है, कलीसिया का जो रवैया इख्तियार करना है वो इसलिए है ताकि बाकी बदन को बचाया जा सके। आप इस बात पर ईमान रखते हैं? The doctor doesn't go out and immediately cuts off your arm. और देखें, डॉक्टर फौरन ये नहीं करता कि आपके बाजू को काट दे। He will try everything to save your arm. पहले वो जो है सब चीजें आजमाता है कि उस बाजू को बचा लिया जाए। If he can't save the arm, he
he has no choice but to cut it off. लेकिन अगर वो बाजू नहीं बचा सकता तो फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं, वो बाजू काट देता है। That's what church discipline is all about, brethren. और यही तरतीब जो है, तरतीब देना यही है। You see your brother or sister going into sin, आप देखते हैं कि आपका भाई या बहन जो है गुनाह में है, you're not going to speak to them in order to destroy them. और आप उनसे इसलिए बात करने नहीं चाहेंगे कि उनकी तबाही उतार दें, You're going out to them in order to help them. बल्कि आप इसलिए उनके पास जाएंगे कि उनको बचा लें, Amen. In order to restore them, उनको बहाल कर दें, so that they can be healthy and beneficial to the church body. ताकि वो सेहत पाएं और मकामी कलीसिया के लिए काम के हो जाएं। But when that member, that person doesn't want to receive correction in the spirit of love, लेकिन अगर वो जो बंदा है वो करेक्शन को कबूल नहीं करता, मोहब्बत को, दुरुस्तगी को कबूल नहीं करता, even when you've taken a second person to go and address that problem, हालांकि आप किसी और शख्स को भी साथ ले जाकर वही सारी बातचीत दोबारा करते हैं, and then that problem's being brought before the church, और फिर वही बात जो है मकामी कलीसिया तक लाई जाती है, if that spirit of unbelief is not dealt with in the life of that individual, और अगर जो है उस शख्स के अंदर वो जो रूह है, अगर उससे बर्ताव ठीक नहीं किया जाता, then there is no choice but to turn them over to Satan. और अगर वो ठीक तरीके से सामने से बर्ताव नहीं करता तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं है, They have to be cut off from the local assembly. तो फिर उनको मकामी कलीसिया से काटना पड़ता है। Amen. But even when they are turned over to the devil, the purpose is still restoration. देखें, अगर उनको अबलीस के हवाले भी किया जाता है तो उसके पीछे नियत ये होती है कि काश ये बहाल हो जाए। Amen. They are being turned over to Satan, that by him chastening them, they will come back. और इस वजह से अबलीस के हवाले किया जाता है कि जब सताया जाएगा तो वापस बहाली की तरफ आएगा। Right. So church discipline is all about restoration. इसीलिए कलीसिया जो तरतीब है वो बहाली के लिए दी गई है, It's about trying to heal the body. और ये इसलिए है ताकि हमारा बदन शिफा पा जाए। Amen. आमीन। But I think many times, brethren, those things are not carried out with love. It's the love that's sometimes lacking in church discipline. और बाज़ औक़ात क्या होता है, कलीसिया में तरतीब तो होती है मगर मोहब्बत की बड़ी कमी होती है। You have got to genuinely be concerned about your brother. क्योंकि देखें, आपको वाकई दिली तौर पर अपने भाई के लिए एहसास होना चाहिए। It's not like you see a brother in the church, you don't like him, और ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे आप मोहब्बत नहीं करते, पसंद नहीं करते, and he's gone into sin while he's in the church, और कलीसिया में होते हुए वो किसी गुनाह में पड़ जाता है, and you think to yourself, this is perfect, now we can get rid of him. और फिर आप अपने ज़हन में सोचते हैं अच्छा ही हुआ, आप जिसको बाहर निकालते हैं। No, saints, it's all about how can I save. नहीं भाइयों, बात ये नहीं है, बात ये है कि कैसे इसे बहाल किया जाए। Amen. You do not deal with any brother or sister unless you have the right attitude first. देखें, आप कभी भी ऐसे भाई या बहन से बात ना करें जब तक आपका रवैया मुस्बत ना हो। Amen. आमीन। In Leviticus chapter 21, God would speak about the priesthood. देखें, खुदा जो है बार के अंदर उसके 21वें बाब के अंदर जो है कहानत के बारे में बात करता है, And there were certain requirements that a priest had to meet before he could carry out his ministry. देखें, और कुछ ऐसी बातें होती थी जो जरूरी होती थी एक काहिन के लिए कि पहले उन पर पूरा उतरे, इससे पहले की खिदमत करे। Any man of the seed of Aaron was not to have a blemish in his body. और जो भी हारून के कबीले में से लोग थे जो उसके बच्चे थे, जरूरी था कि वो बेऐब होते। If he had a blemish in his body, it would disqualify him from his ministry. देखें, अगर उसके बदन में कोई ऐब होता तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता, खिदमत नहीं कर सकता था। Right? So he's born called to the ministry. देखिए, वो पैदाइशी तौर पर खिदमत के लिए बुलाया गया था Because he's of the seed of Aaron. क्योंकि वो हारून की नस्ल में से था। So the ministry was his before birth. देखें, पैदाइश से पहले ही खिदमत उसको दे दी गई थी। But if there are flaws in his body, then he's disqualified. लेकिन अगर उसके बदन में ऐब होता था तो वो रद्द कर दिया जाता था। Amen. God is teaching us about spiritual genetic defects. देखें, खुदा जो है हमें रूहानी पैदाइशी बीमारियों के बारे में बता रहा है। If a priest was cross-eyed,
he cannot be a priest. देखें, अगर जो एक काहिन वो बेटा होता था तो वो काहिन नहीं बन सकता था, Because when your eyes are crossed, brethren, you start seeing two of everything. क्योंकि जब आप बेंगे होते हैं तो फिर आप हर चीज को दो दो देखते हैं। You're not seeing one God. फिर आपको एक खुदा नजर नहीं आता, Start preaching, there's two gods, और फिर जो है मनादी की जाती है दो खुदाओं की, there's three gods. और फिर तीन खुदाओं की। You're a gifted preacher, yes, that came from before birth. देखें, आप एक मनाद हैं और ये पैदाइश से पहले था, But you've got a spiritual defect in your body. लेकिन आपके अंदर रूहानी बीमारी है, Preach in the house of God with that kind of defect. और आप ऐसी बीमारी के साथ खुदा के घर में मनादी नहीं कर सकते। While you are all rejoicing in the word, we drink water. जब आप सब तालियां बजा के एंजॉय कर रहे थे, हम थोड़ा पानी पी ले रहे थे। You keep that up. जोरदार तालियां बजा रहे थे। You get a lot of water. Amen. आमीन। Because if you're seeing two or three, you don't know which one of them is the real देखिए, God. जब आपको एक या दो दिखाई देते तो फिर आपको नहीं पता कि सच्चा खुदा कौन है। The Bible says of that Levite, he had a flat nose, he was disqualified. और देखिए, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगर एक लावी का नाक भी सही नहीं होता था तो उसको निकाल दिया जाता था। Because the sense of smell gives you a lot of discernment. क्योंकि देखें, जो आप सूंघते हैं ये परख को जाहिर करता है, That's how you know there's a gas leak in the building. क्योंकि सूंघ सही पाएंगे तो आपको पता चलेगा बिल्डिंग में गैस लीक है। You can't see the gas leak. देखें, क्योंकि आप गैस जो लीक होती है उसको देख नहीं पाते You might not hear it, और ना ही उसको सुन पाएंगे, but you can smell it. लेकिन उसको सूंघ पाएंगे। It speaks of discernment, brethren. और देखें, ये जो है भाइयों, ये परख की निशानी है। Ministry that cannot correctly place the scriptures for the time they are living in. और देखें, Yes, that represents men that do not correctly place the word for their day. और ये ऐसे बंदे की निशानी है जो कलाम को बिल्कुल ठीक ठीक बयान नहीं करता। Amen. आमीन। Preaching about a historical God, क्योंकि फिर वो ऐसा बंदा जो है वो किसी तारीखी खुदा की मनादी करता रहता है, not preaching present tense word. और वो जो हालिया जुमले का खुदा है उसकी मनादी नहीं करता। Amen. This message of the Hour Saints did not expire in 1965. देखे मेरे भाइयों बहनों, ये जो वक्त का पैगाम है ये 1965 में खत्म नहीं हुआ। I'm not standing up here saying God sent a prophet. God sent a prophet. और मैं यहाँ पर खड़े होकर ये नहीं कह रहा कि खुदा सिर्फ नबी में था, खुदा सिर्फ नबी में था। Yes, God did send a prophet. I believe that. हाँ, खुदा नबी में था, But the message isn't God sent a prophet. लेकिन देखें जो पैगाम है वो ये नहीं है कि नबी आया है। The message was to present and reveal Jesus to पैगाम ये था कि नबी ने यीशु मसीह का तारुफ करवाना था, उसकी पहचान करवानी थी। In Genesis 24, the ministry of Eliezer was to bring Rebecca to Isaac. और पैदाइश 24 के अंदर जो एलीएज़र की खिदमत थी वो इसहाक तक दुल्हन को रेबेका को पहुंचाना था। Amen. आमीन। And once Rebecca has been introduced to Isaac, और जब रेबेका को जो है तारुफ करवा दिया गया इसहाक के साथ, there is no more Eliezer in the story. तो फिर उसके बाद एलीएज़र उस मंजर पर नहीं रहा। Amen. आमीन। So we love that God sent a prophet. I love that. और हम मोहब्बत करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक नबी को भेजा, And I believe this message, brethren. और मैं इस पैगाम पर ईमान रखता हूँ भाइयों। But the message reveals Jesus. लेकिन ये जो पैगाम है ये असल में यीशु मसीह को आश्कारा करता है। Praise the Lord. आमीन। If a man had a broken foot, he could not be a priest. देखें, अगर एक आदमी का पांव टूटा होता था तो वो काहिन नहीं हो सकता था। In other words, he's a man that's like limping all the time. और देखें, दूसरे लफ्जों में वो इस तरह से लंगड़ा के चलता था। He's a man who cannot walk straight. देखें, वो एक ऐसा शख्स होता था जो सीधा नहीं चल सकता था, A man who can't stay true to the
word of God. और वो ऐसा शख्स होता था जो खुदा के साथ सीधा नहीं चल सकता था, कलाम के साथ सीधा नहीं चल सकता था। And a man that has a seriously bad foot, somebody has to support him all the time. और देखें, जिसका पाँव बहुत ज्यादा खराब हो तो किसी को हमेशा उसकी मदद करनी पड़ती है, He always has to be propped up by somebody else. और किसी एक को जो है उसको हमेशा सामने लाना पड़ता है, He doesn't have enough conviction to stand on his own 2 feet. क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। Stand on his own 2 feet and believe the word 100%. काहीं को अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर ईमान रखना चाहिए कि खुदा का कलाम 100% सच्चा है। If a man had a broken hand, he could not be a priest. और अगर एक शख्स का हाथ टूटा होता था तो वो काहिन नहीं हो सकता था, That speaks of a man that cannot do the works of God. क्योंकि ये जाहिर करता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो खुदा के काम नहीं कर सकता, You work by your hands. क्योंकि आप अपने हाथों के वसीला काम करते हैं। Amen. But if the hand is damaged, how can you do God's work? लेकिन अगर आपका हाथ ही जख्मी, आप खुदा का काम कैसे करेंगे? So the man is gifted, but he cannot do the works of God. देखें, उस बंदे के पास नेमत तो है मगर वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। The purpose of faith is so you can do the works of God. Of faith is that you might do the works of God. और ईमान देने का मकसद ये है कि आप खुदा की खिदमत को पूरे तौर पर सरअंजाम दे सकें। You believe that? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? Works is faith expressed. क्योंकि अमाल ही हैं जो ईमान को जाहिर करते हैं। Amen. So true revelation, a real confidence in the word, will empower you to serve the Lord. और जब आपको कलाम का हकीकी मुकाशफा मिल जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली हिम्मत मिलती है ये है कि ये कैसा शख्स है जो मसीह में बढ़ नहीं रहा। He's been in the message for decades and he still hasn't grown up. वो मैसेज में तो रहा है मगर अभी तक बढ़ नहीं पाया। He still has the thinking of a child. और आज भी उसकी जो सोच है बचकाना है। Do you know what the new birth is, brethren? आप जानते हैं भाइयों, नया जन्म क्या है? It is spiritual babyhood. और देखें, नया जन्म पाना ये है कि आप रूहानी बच्चे के तौर पे सामने आते हैं। Right? The key is in the word birth, babyhood. और देखें, ये जो इस कलाम के अंदर बात है वो है बच्चे की मानी सामने आना। Oh, we rejoice. I'm born again. I'm born again. और हम जो है बड़े जोरों शोरों से बोलते हैं, अरे हमने नया जन्म लिया है, हमने नया जन्म लिया है। Oh, that's wonderful, but you're only a baby. ये अच्छी बात है मगर अभी तक आप बच्चे ही हैं। Because it's a birth. देखें, जन्म तो हो लिया है मगर बड़े नहीं हैं। And what do babies do? They cry a lot. और बच्चे क्या करते हैं? वो रोते हैं। Amen. They need somebody to help them even walk around. और उनको जरूरत होती है कि उनको कोई लेकर चले। They can't think for themselves. और वो अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। Right? They make very naughty. और बड़े शरारती होते हैं। They make lots of mistakes. और बड़ी गलतियां करते हैं। That's part of natural growth, saints. और देखें, जिस जगह पर अभी वो मौजूद है वो ऐसे ही रहेंगे। And that is the same thing for your spiritual growth. और आपकी रूहानी बेदारी, आपकी रूहानी तरक्की के बारे में भी यही बात है। If you are born again, you're only a baby. You are immature. और देखें, आपके नए जन्म पाने का मतलब कि आप सिर्फ अभी पैदा हुए हैं। Right? You will say the wrong things. और जब जन्म पा लिया है तो बाद में भी गलत बातें करेंगे। You will do the wrong things. और आप गलत बरकतें भी करेंगे। You will always need correcting. Pow, pow, pow. और आपको दुरुस्तगी की भी जरूरत पड़ेगी। You're still a son of God. आप खुदा के बेटे